وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام ہی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے. اس پر عبداللہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی تو یہودیوں کے دشمن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی. سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا. اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے. اگر عورت کی منی پہل کر جاتی ہے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے. یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے. اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھری شروع کر دیں گے. چنانچہ کچھ یہودی آئے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں. ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سے سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے. اتنے میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سے سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے. وہیں وہ ان کی برائی کرنے لگے. خبروں کے آغاز سے خبر ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر. منفرد و تمام سہولتوں سے آراستہ نظام آباد کے نمبر 1 4 اسٹار ہوٹل کرشنا کا آغاز. MLC کے کویتا اربن MLA بیگالا MLA شکیل عامر اور RTC چیئرمین باجی ریڈی نے کی افتتاحی تقریب میں شرکت. سینکڑوں چاہنے والوں نے گادے کرشنا کو دی مبارکباد. آنے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس حکومت بنائے گی اور عوام کو دیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے گا. PRS نے عوام کو وعدوں کے نام پر دھوکہ دیا. راہل گاندھی. صحافیوں کے دیرینہ حل طلب مسائل کو PRS اپنے انتخابی منشور میں شامل کرے. تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن ضلع نظام آباد وفد کی. MLC کے کویتا سے ملاقات. تحریری یادداشت حوالے کی. بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف. ضلع میں ایک خوبصورت ہوٹل کا آغاز قابل ستائش. MLC کے کویتا کی ستائش. MLC کے کویتا کی جانب سے بھارتی گروپ چیئرمین گادھے مدھوسودن MD گادھے کرشنا کو مبارکباد. نظام آباد کے حدود حیدرآباد روڈ پر بھارتی گروپ چیئرمین گادھے مدھوسودن MD گادھے کرشنا کی نگرانی
तमाम सहूलियात से आरास्ता 5 स्टार होटल के मुमासिल तामीर अमल में लाएगी। वृंदावन गार्डन के अहाते में कुशादा जगह में जिले में पहली बार 4 स्टार होटल को तैयार किया गया। इस होटल की इफ्तिताई तकरीब बहुत ही जोश व खरोश से अमल में लाएगी। इस मौके पर MLC के कविता ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इनके हमरा रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता के हमरा इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर कायदीन ने होटल में रेस्टोरेंट, लॉन्च एरिया, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल, मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल, लग्जरी कमरों का जायजा लिया और होटल MD गादे कृष्णा से इस होटल की पूरी जानकारी हासिल की। MLC के कविता के होटल इफ्तिताई प्रोग्राम के बाद MLC के कविता से सेल्फी लेने वालों का हुजूम देखा गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसियों ने बताया कि राजधानी इलाकों की होटल से बेहतर 4 स्टार होटल का निजामाबाद में क़याम अमल में लाना काबिल सताइश है, जो नई नस्ल जदीद दौर के नौजवानों के लिए एक पसंदीदा होटल कहलाएंगे, जिसमें नए पकवान, नए डिशेस, नया जायका मिलेगा, जो अवाम को कृष्णा होटल की जानिब खींच लाएगा। इसके अलावा पार्किंग, लग्जरी कमरे, बार एंड रेस्टोरेंट की सहूलत होगी। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत बनाएगी। अवाम से किए वादों को पूरा किया जाएगा। 6 गारंटी स्कीमात के साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर, खवातीन को माहाना भत्ता व दीगर सहूलतें अवाम को दी जाएगी। कांग्रेस जो अवाम से वादा करती है उसको पूरा करती है। BRS ने अवाम से जो वादा किया है उसे फरामोश कर दिया और खानदानी हुक्मरानी की। मोड़तार में रोड शो व कॉर्नर मीटिंग से राहुल गांधी का खिताब। हल्का संभली बालकोंडा के मोड़ताड़ मंडल मुस्तकर में कांग्रेस की विजय भीरी यात्रा में रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करेगी। हम चाहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने से अवाम को फायदा हासिल होगा। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में पार्लियामेंट में रियासत के लिए तेलंगाना बिल को मंजूर किया गया, मगर गुज़िश्ता 10 सालों में BRS पार्टी की हुकूमत थी। अवाम के पैसे को चीफ मिनिस्टर KCR और उनके खानदान के अफराद लूट रहे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस पार्टी हल्का बालकुंडा के उम्मीदवार M सुनील कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। मैं यहाँ आपसे झूठे वादे करने नहीं आया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपये आएंगे, हर फर्द को 3 एकड़ अराजी आएंगे। कांग्रेस पार्टी जो बात करती है वो कर दिखाती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए उसको पूरा किया। यहाँ पर भी जो वादे किए जाएंगे उसको पूरा किया जाएगा। तेलंगाना में 6 गारंटी स्कीमात को अमल में लाया जाएंगे। तेलंगाना भर में खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत, खवातीन को हर महीना बैंक अकाउंट में 2500 रुपये जमा किए जाएंगे। 500 में गैस सिलेंडर, महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खानदान को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, रैतु भरोसा स्कीम के तहत 1500 रुपये, मजदूरों को 12,000 रुपये सालाना, हर फसल पर 500 रुपये MSC बोनस, बेघर गरीब खानदान में इंदिरा स्कीम के तहत 5 लाख रुपये। शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया जाएगा। BRS पार्टी को इख्तिदार से बेदखल करना मकसद है। रियासत तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस पार्टी की होगी। BRS और BJP एक सिक्के के 2 रुख हैं। मुल्क भर में BJP हुकूमत अपोजिशन कायदीन के खिलाफ CBI, ED के छापे मार रहे हैं, क्योंकि BRS हुकूमत के खिलाफ तहकीकात नहीं की जा रही। सवाल किया, मेरे खिलाफ 2400 केसों को दर्ज किया गया और मेरी पार्लियामेंट में रुकनियत को भी मनसूख कर दिया, मगर CM KCR पार्लियामेंट में BJP हुकूमत की मुकम्मल तायीद व हिमायत कर रहे हैं और GST के मामले में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। BJP, BRS, MIM ये तीनों पार्टियां कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। मेरी रुकनियत खत्म करने के बाद मुझे घर खाली करने को कहा गया, मैं फौरी खाली कर दिया। मुझे घर की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का हर घर मेरा है। मैं अवाम के दिलों में रहता हूँ। राहुल गांधी ने अवाम से कहा कि अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को दी। कांग्रेस पार्टी हमेशा अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए काम की है, आइंदा करेंगे। अवाम कांग्रेस को वोट देकर पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन, MLA, MP, कांग्रेस पार्टी सदर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी,
शब्बीर अली, साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, महेश कुमार गौड़, साबिका MP मधु याशिकी गौड़, पार्टी कायदीन कारकुनान, माइनॉरिटी कायदीन, कांग्रेस पार्टी मंडल सदूर, खवातीन वो अवाम की कसीर तादाद में शिरकत की। अवाम में जोश व खरोश देखा गया। 1 घंटे तक ट्रैफिक में खलल पड़ा। तेलंगाना का सपना पूरा किया। हमारा लक्ष्य था कि तेलंगाना की जनता की सरकार बने, मगर वो सच्चाई नहीं आई। आज दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई है। तेलंगाना राष्ट्र मिनिस्टर है, एक परिवार है। तेलंगाना का पूरा धन उनके हाथों में है, वो आपसे छीनते हैं। शराब हो, जमीन हो, जहां भी तेलंगाना की जनता का धन है, वहां केसीआर के परिवार का कोई ना कोई बैठा हुआ है। मैं यहां आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बैंक में 15 लाख रुपए डाल देंगे। ये नहीं कहूंगा कि 3-4 एकड़ जमीन हर व्यक्ति को दिया जाएगा। जो मैं यहां आपको कहूंगा वो कांग्रेस पार्टी और मैं आपको करके दिखा देंगे। जो वायदे किए उनको हमने पूरा किया। हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में वायदे किए, मध्य प्रदेश में वायदे किए, उनको हमने पूरा किया। और जो हम यहाँ कहने वाले हैं इनको भी हम पूरा करके। हमारा पहला वायदा तेलंगाना की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए वायदा है। वो तेलंगाना के भविष्य को पालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, महंगाई का सामना करती हैं और एक प्रकार से तेलंगाना की वो रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए महालक्ष्मी योजना में हम तेलंगाना की महिलाओं को बैंक अकाउंट में और ये हम इस बात से खड़े हुए हैं, तेलंगाना में जो भी सरकार बनेगी उन्हें महिलाओं को घूमना मौका देगा। मैं అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో ప్రతి మహిళ అన్ని ఆర్టీసీ బస్సులో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉచితంగా ఫ్రీగా ప్రయాణం చేస్తారు। हम अकाउंट में हर महीने 2005 में ప్రతి మహిళ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 2500 రూపాయలు మొత్తాము। पहले आप 100 रुपया सिलेंडर थी, 15 का सिलेंडर खरीदेंगे, 500 रुपए वहां बचेंगे। గ్యాస్ సిలిండర్ ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు कितने में लेती थी, अब आपको वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మీ ప్రయాణం, మహిళల ప్రయాణం ఉచితంగా జరుగుతుంది। ఆర్టీసీలో మహిళలు టికెట్లు కొనే అవసరం లేదు। जो हमने कर्नाटक में किया वो हम यहाँ करने जा रहे हैं। गृह ज्योति 2000 यूनिट फ्री बिजली के, 200 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली के हर परिवार को। किसानों के लिए रैतु भरोसा 15,000 रुपए प्रति एकड़, किसानों के लिए 12,000 रुपए प्रति एकड़, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए। రైతులకి రైతు భరోసా కింద ఎకరానికి సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము। రైతు కూలీలకి, భూమి లేని రైతు కూలీలకి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము। और टर्मरिक फार्मर्स को 12,000 से 15,000 रुपए पर क्विंटल पैसा। పసుపు जो भी आप उगाते हो उसके लिए MSP से 500 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा पैसा। ప్రతి వ్యవసాయ పంటకి MSP కి అదనంగా క్వింటాల్ కి 500 రూపాయలు బోనస్ ఇవ్వబోతున్నాము। इंद्रम्मा इंड्लू स्कीम में 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए, उनके लिए जिनके पास घर नहीं है। ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకం కింద ఇల్లు లేని వారికి ఇప్పటికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నారు। और उनका योजना 12,000 रुपए महीने हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। చేరు పథకం కింద పెన్షన్లో 40,000 రూపాయలు చేస్తున్నారు। उसके पीछे सुनो, దాని ఆలోచన ఉంది। आपको हटाना है పోతే మనందరూ ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కట్టదివ్వాలి। और राइट कमरा इन बीच में, ఈ యుద్ధం కాంగ్రెస్ కి మాత్రమే। राइट तेलंगाना और तेलंगाना के बीच में है। ఈ యుద్ధం దొరలైన ప్రజాప్రభుత్వానికి పనిచేస్తాము। और देखिए हमारे यहाँ पे कांग्रेस
पर काफी कर बैठे खड़े हैं। ఇక్కడ చాలా మంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు यूथ कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी एनएसयू के बदल के सब लोग हैं। యూత్ కాంగ్రెస్ మహిళా కాంగ్రెస్ ఎన్ఎస్ఐ సేవల్ అందరూ ఇక్కడ రావచ్చు. जंगल में भी जाता है तो शेर क्या मिलता है? మన అడవి పోతే పులి ఒక్కటే పడుతుంది, ఒక్క పడుతుంది. जंगल में शेर है, दूर का शेर है। అదన పులి ఒక దగ్గర పెట్టి ఇంకొకటి రెండు పులులకు కలవు. देखिए कांग्रेस पार्टी के शेर यहाँ एक ఇక్కడ మేపులు ఏ కాంగ్రెస్ చేస్తున్నా. और ये सरकार होगी, ये तेलंगाना की सरकार होगी, मगर ये कांग्रेस पार्टी का शेर हो सकता है, बाकी भी सरकार होगी। రాబోయే ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల ప్రభుత్వం భవిష్యత్ ప్రభుత్వం చెప్పిన ప్రకారం अब आइए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को चाहिए, हमारे यहाँ कैंडिडेट आइए आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। అక్కలు చెల్లెలు అన్నలు తమ్ముళ్ళు ఇంత వేడి వాతావరణంలో కూడా మీరు ఇంత దూరం వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను। जिले में होटल कृष्णा की इफ्तिताही तकरीब जश्न के माहौल में। होटल की खूबसूरती ने अवाम का दिल मोह लिया। इफ्तिताही तकरीब में आला कायदीन ने हिस्सा लिया। जिले में 4 स्टार होटल का क़याम काबिल सताइश। निजामाबाद की हुदूद हैदराबाद रोड पर वृंदावन गार्डन के अहाते में तामीर करदा होटल कृष्णा का आज इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें बोधन एमएलए शकील आमिर, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने हाजिर होते हुए होटल कृष्णा की इफ्तिताही तकरीब में खुशी का इजहार किया। इस मौके पर होटल एमडी जी कृष्णा ने बताया कि आज की इस नई नस्ल ग्राहकों की दिलचस्पियों के मुताबिक बंगाली सहूलियात के मुताबिक होटल को अमल में लाया गया। कृष्णा होटल के इफ्तिताही तकरीब के इस मौके पर साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी, रियासती कांग्रेस पार्टी कारगुजार सदर बी महेश कुमार गौड़, पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, गड़गू गंगाधर के नगेश रेड्डी भी हाजिर हुए और बताया कि निजामाबाद शहर में 4 स्टार होटल का क़याम अमल में लाया जाना काबिल सताइश। मेहमानों का एमडी गादे कृष्णा ने शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। इनके अलावा बीजेपी कॉर्पोरेटर न्यालम राजू, वाई सुधाकर, शीला श्रीनिवास, स्वामी यादव, श्रीनिवास शर्मा, बाजी रेड्डी, रामाकांत ने भी हाजिर होते हुए एमडी गादे कृष्णा को गुलदस्ते पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा सरकारी अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, एक्साइज डिप्टी कमिश्नर मल्ला रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर ओहदेदार शहर के मशहूर डॉक्टर जीवन राव, विशाल, राजेंद्र प्रसाद, दीगर डॉक्टरों ने भी इस मौके पर हिस्सा लेते हुए होटल कृष्णा के एमडी गादे कृष्णा को मुबारकबाद पेश की। शहर के मशहूर विकला जगदीश्वर राव, राजकुमार सौबेदार, सीए गौतम, दीगर कॉर्पोरेटर्स ने इस इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। कृष्णा होटल की ये तकरीब बहुत बड़े जश्न के माहौल में दिखाई दे रही। इस होटल की तामीर, इसकी सहूलियत ग्राहकों का दिल मोह लेगी। सरकारी धान खरीदी सेंटरों को बेहतर अंदाज से बिना किसी शिकायत साफ शिफाफ तरीके से चलाने और किसानों को धान खरीदी सेंटरों पर तमाम सहूलतें फराहम करने का जिला अहदेदारों से जिला कलेक्टर की ताकीद। जिला भर में सरकारी धान खरीदी सेंटरों को पूरी सहूलियत के साथ कायम किए जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की अहदेदारों को ताकीद। इंदलवई मंडल डिशपली मंडल के बर्दीपुर गाँव हुकूमत की जानिब से इनेकाद किए जाने वाले धान खरीदी सेंटर का इन्होंने इफ्तिताह किया। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किसानों की लाई गई फसलों की जांच की। मॉइस्चर मीटर के जरिए इन्होंने धान की नमी के फीसद की जांच की। किसानों की लाई धान की फसलों को खरीदी सेंटरों से मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। दलालों से बाज आने, धोखे में न आने की बात बताई। ए ग्रेड धान फी कुंटल 2203 रुपये और दूसरे किस्म की धान को फी कुंटल 2183 रुपये की अदायगी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया। किसानों को बेहतर ए ग्रेड धान सुखाकर लाने, अगर कोई मसाइल दरपेश होने पर ओहदेदारों के इल्म में लाने की बात बताई और साथ में ज़राई ओहदेदारों से सदाकती लेटर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पट्टे पासबुक, ज़ेरॉक्स अपने साथ लाए। किसानों को तमाम सहूलियात मुहैया करते हुए धान खरीदी सेंटर चलाने ओहदेदारों को ताकीद की। धान की खरीदी में तेजी लाते हुए खरीदी किए गए धानों को फौरी राइस मिलों में रवाना करने, जरूरत के मुताबिक लारियों को तैयार रखने और हर फर्द जिम्मेदारी के साथ किसानों की फसलों की खरीदी को आसान बनाने ओहदेदारों को ताकीद की।
किसानों में बेहतर किस्म के धान लाने, सूखे हुए धान लाने के लिए शऊर बेदारी लाए। अचानक गैर मौसमी बारिश से धानों को भीगने से बचाने के पूरे इंतजाम करने का मशवरा देते हुए बताया कि किसानों को इनकी फसलों के दाम फौरी अदायगी के इंतजाम कर, किसानों को पीने के पानी के इंतजाम शामियाने भी डलवाने का मशवरा दिया। इस मौके पर इनके हमरा DSO चंद्र प्रकाश, सिविल सप्लाई DM जगदीश, DCO सिंहाचलम, जिला सराई ओहदेदार वाजिद हुसैन, दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक वक्फा। मोक्ष फैशन स्टोर शहर निजामाबाद में मेंस वेयर में अपनी मुनफरिद पहचान और मकाम रखने वाला मेंस गारमेंट्स शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर फॉर मेंस एंड किड्स, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। हमारे यहाँ नित नए डिजाइन और फैशनेबल ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के अलावा शादी ब्याह वो दिगर तकारीब के लिए डिजाइनर मलबूसात, ब्लेजर वो बच्चों के लिए खुसूसी स्टॉक, दशहरा वो दिवाली का स्पेशल सेल स्टॉक दस्तयाब है। अपनी तकारीब वो त्योहारों को मोक्ष के मलबूसात से मजीद खूबसूरत बनाए। नित नए डिजाइन मेंस वो किड्स वेयर का मुनफरिद शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। प्रोप्राइटर प्रवीण, सेल नंबर 9490966136। हमारे ब्रांचेस मोक्ष फैशन स्टोर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर्स अपोजिट राजा मैचिंग सेंटर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, दक्ष किड्स वेयर अपोजिट मोक्ष फैशन, अंबरपेट, AA फैशन अपोजिट मोक्ष फैशन, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर डिशपल्ली, दक्ष मेंस वेयर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट। पिनाकल ब्लॉम्स की खिदमत अब आपके अपने शहर निजामाबाद में ऑटिज्म की जल्द पहचान, उतने ही अच्छे नताइज, बच्चों को कमजोर व लागर कर देने वाला और बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बनने वाला मर्ज ऑटिज्म, मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ पिनाकल थेरेपी से ही मुमकिन। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की बरवक्त जांच और तशखीस से ही इस खतरनाक मर्ज से बच्चों को महफूज करके बच्चों को सेहतमंद जिंदगी दी जा सकती है। जिस्मानी व दिमागी तौर पर बच्चों का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करना, सेलफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल, बात करते हुए आंखें ना मिला पाना, एक ही चीज को बार बार करना, ये ऑटिज्म की अलामत है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ही मुमकिन है। पिनाकल की जदीद तकनीक के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशनल थेरेपी सिर्फ और सिर्फ पिनाकल ब्लॉम्स पर दस्तयाब। जल्द राब्ता करें और अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाएं। हमारा पता है पिनाकल ब्लॉम्स ऑटिज्म थेरेपी सेंटर, हुलांग चौरास्ता, निजामाबाद। सेल नंबर 9100181181। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। BRS के इंतखाबी मंशूर में उर्दू सहाफियों के देरीना हल तलब मुतालबात को शामिल किया जाए। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला निजामाबाद के वफद ने MLC के कविता को पेश की याददाश्त। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिला निजामाबाद का वफद मोहम्मद अफजल खान सदर की क़ियादत में MLC निजामाबाद की कविता से मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना के उर्दू सहाफत से वाबस्ता सहाफियों के देरीना मसाइल की यकसुई के लिए एक तफसीली याददाश्त पेश की और इनसे दरख्वास्त की कि मौजूदा असम्बली इंतखाबात के दौरान तेलंगाना रियासती हुकूमत व BRS पार्टी की जानिब से जारी किए जाने वाले इंतखाबी मंशूर में उर्दू सहाफियों के लिए भी तरजीह बुनियादों पर पार्टी मंशूर में शामिल करें। मोहम्मद अफजल खान ने MLC के कविता को बताया कि उर्दू सहाफियों को कई एक मसाइल का सामना है। किसी भी हुकूमत ने इस ज़िम्मन में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। उर्दू सहाफियों के देरीना मसाइल की यकसुई के लिए के कविता ने वफद को बताया कि BRS पार्टी व तेलंगाना रियासती हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों के अलावा सहाफत बिलखुसूस उर्दू सहाफियों के लिए संजीदा इक़दामात पर गौर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से पेश की गई याददाश्त में जिन नुकात पर
तवज्जो मबसूल करवाई गई है, इसको इंतखाबी मंशूर में शामिल करने का गौर करने का तयक़ुन था कि कविता ने कहा कि वो उर्दू सहाफ़ियों के देरीना हल तलब मसाइल हर लम्हा उनके साथ। इस मौके पर अशफाक अहमद खान सरपरस्त आला, साजिद अख्तर नायब सदर, सैयद मौलाना अब्दुल खदीर हुस्सामी खाजिम, मोहम्मद अमीरुद्दीन पब्लिसिटी सेक्रेटरी, मोहम्मद कलीम बोधन, फेडरेशन अरकान अतीक अहमद खान, कबीर अहमद KBR न्यूज़, मोहम्मद आरिफ कैमरामैन अवाम टीवी, बिलाल खान कैमरामैन परवाज टीवी, दीगर भी शामिल थे। तेलंगाना रियासत को तरक्याती कामों में देश भर में पहला मुकाम हासिल, तीसरी बार जिताने पर और कई तरक्याती स्कीमों के जरिए और तरक्की दी जाएगी। गरीब आवाम की फलाह के लिए और नई स्कीमों के जरिए तरक्याती काम अमल में लाए जाएंगे। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल के स्वामेश्वर गांव के हुदूद में हल्का सतह पर BRS पार्टी मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर बांसवाड़ा हल्का BRS पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया और पार्टी कारकुनों कायदीन से तेलंगाना रियासत में अमल में लाए जा रहे तरक्याती स्कीमों की तफसीलात को इल्म में लाया। तरक्याती कामों, तरक्याती स्कीमों को डिजिटल स्क्रीन पर बताते हुए तफसीलात की आगाही की और इन स्कीमों को अवाम में लाने का मशवरा दिया। इलेक्शन मंशूर के जरिए किए गए वादों को गांव-गांव, घर-घर जाकर अवाम में लाने की बात बताई। नवंबर की 4 तारीख को नॉमिनेशन का पहली सीट दाखिल करने और नवंबर 7 को दूसरा नॉमिनेशन सीट को दाखिल किए जाने पर अवाम को इस दिन कसीर तादाद में हाजिर होकर प्रोग्राम को कामयाब करने की अपील की। మనం సీఎం గారు మీటింగ్ పెట్టిన దగ్గర ఆ ఏరియాలోనే ఎంగడ అంగడ బజార్లో 3 తారీఖు ఉంటుంది, 4 తారీఖు నామినేషన్, 7 తారీఖు ఒక సెట్ నామినేషన్, దాని తర్వాత ప్రచారం మొదలవుతుంది. సీఎం గారు వెళ్ళిన తర్వాత నామినేట్ చేసిన తర్వాత ఏ గ్రామానికి ఎట్లా ఎప్పుడు రావాలో, ఎన్ని గ్రామాలు తిరగాలని ఒక ప్రోగ్రామ్ చాకౌట్ చేస్తాం. ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ తయారు చేస్తాం, ప్రచార షెడ్యూల్ తయారు చేస్తాం, మీకు ముందుగానే పంపిస్తాం. అంటే మళ్ళీ మీరు ఆ రోజు ఊరు ఉండే విధంగా రేపు పొద్దున వస్తున్నామంటే రాత్రి చెప్తే కొంచెం మీరు వేరే ఊరికి పోతారు, బంధువుల దగ్గరికి పోతారు, లేకపోతే ఇంకో ఊరికి పోతారు. కాబట్టి మేము వచ్చేటువంటి సమాచారం 2-3 రోజుల ముందే షెడ్యూల్ తయారు చేసి మీ గ్రామానికి పంపిస్తాం. म्यूनिसिपल मजदूरों को बिना किसी ट्रेनिंग के इनकी जानों से खेला जा रहा है। मजदूर अंजया की मौत की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल अहदेदार कबूल करे, CPM कायदीन का मुतालबा। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जटिंग मिशन पर काम करने वाले मजदूर अंजया की नाश पर CPM कायदीन मलियाला गवर्नर म्यूनिसिपल ड्राइवर्स यूनियन सदर भोपति ने फूल मालाएं डालते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर CPM कायद मलियाला गवर्नर ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से म्यूनिसिपल मजदूरों को ट्रेनिंग न दिए जाने से मजदूर हादसात का शिकार हो रहे हैं। अंजया की मौत के म्यूनिसिपल अहदेदार जिम्मेदारी कबूल करे। इन्होंने मुतालबा किया कि मुतासिर के खानदान को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाए। अंजया के खानदान इनके अफराद को सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का भी मुतालबा किया। इस हादसे में जख्मी गंगा राजू के खानदान को 2 लाख रुपये दिए जाए और गंगा राजू का बेहतर इलाज करवाया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक अंजया के खानदान के साथ इंसाफ करने का अहदेदारों के तयक़ुन पर अंजया की आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल ड्राइवर्स यूनियन नायब सदर नवीन, अशोक, आशाबाई दीगर भी मौजूद थे। సోమవారం రోజు పాలస్తీనా గాజా పట్టణంపై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసి వందలాది మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నటువంటి దాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా గాజా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రి పైన దాడి చేయడం వల్ల వందలాది మంది మరణించినటువంటి దాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇది చాలా అన్యాయమైనటువంటిది. ఈ పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం తీవ్రమయ్యేటట్లయితే అరబ్ దేశాలన్నీ కూడా స్పందించడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఇప్పటికే ఇరాన్ అధ్యక్షుడు ఆయతుల్లా అలీ ఖొమేనీ గారు హెచ్చరించారు. అదేవిధంగా మన దేశ ప్రధాని కూడా ఈ యుద్ధాన్ని ఆపడానికి ఇజ్రాయెల్ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిందిగా CPML प्रजापंथा पार्टी का మేము डिमांड। एड़पल्ली मंडल के जेतापुर गांव में सुनसान इलाके में एक पल्सर पर सवार शख्स ने बातों में लगाकर खातून के गले से तलाई चैन लेकर फरार हो गया।
एड़पली मंडल के जैतापुर गांव दोपहर के औकात में शिवमा शारदा नामी 2 खवातीन पैदल जा रही थी कि पल्सर गाड़ी पर एक शख्स पीछे से आकर सुनसान एरिया का फायदा उठाते हुए अपने किसी रिश्तेदार का पता पूछने के बहाने से एम शारदा नामी खातून के गले से 2 तोले की तलाई चेन लेकर फरार हो गया। इस मौके पर वो किसी मदद के लिए आवाज देती वो फरार हो चुका था। आखिरकार शारदा ने डायल 100 को फोन करते हुए एड़पली एसआई विक्रम को ये बात बताई। इत्तला मिलते ही एसीपी ने मौके वारदात पहुंचकर तफसीलात हासिल करते हुए पुलिस गश्त लगाई और बताया कि सारिक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और मुतासरा के साथ इंसाफ किए जाने की एसीपी किरण कुमार ने मीडिया के सामने बात बताई। एसआई विक्रम ने कहा कि केस दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही। इस मौके पर मुकामी एसआई बीआरएस खायद वेंकटराव कृष्णाराव दीगर भी मौजूद थी। ఒక మోటార్ సైకిల్లో ఎదురుగా వచ్చి ఎవరిదో అడ్రస్ అడుగుతున్నట్టు తను లేడీని అడుగుతూ సడన్గా ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఆమె మెడలోంచి ఆమె మంగళసూత్రము లాగడం జరిగింది. లాగిన వెంటనే ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 పోర్షన్స్ చైన్ అతని చేతిలోకి వచ్చింది, మిగతా పోర్షన్ కింద పడింది. అతను ఇమీడియట్గా అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. ఈ విషయం తెలుసుకుని ఇది వెంకట్రావు గారి ఇంటి ముందు జరగడంతో వెంకట్రావు గారు డయల్ 100కి అలాగే పోలీస్ స్టేషన్కి ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది. సమాచారం తెలిసిన వెంబడే ఏడపల్లి ఎస్ఐ గారు విక్రమ్ స్పాట్కి బయలుదేరి నాకు కూడా ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది. తెలుసుకున్న వెంబడే ఏసీపీ క్రైమ్ టీమ్ని తీసుకొని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. జైతాపూర్ గ్రామంలో విక్టిమ్తో ఆమె లేడీ శారద గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. వివరాలన్నీ తెలుసుకున్నాము. ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ అన్ని సెర్చ్ చేస్తుంది ఏసీపీ క్రైమ్ టీము. ఓల్డ్ అఫెండర్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా. इख्तिताम से खबरें डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। मुनफरिद को तमाम सहूलतों से आरास्ता निजामाबाद के नंबर 1 4 स्टार होटल कृष्णा का आगाज। एमएलसी के कविता, अर्बन एमएलए बीगाला, एमएलए शकील आमिर और आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी ने की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। सैकड़ों चाहने वालों ने गादे कृष्णा को दी मुबारकबाद। आने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी और अवाम को दिए गए वादों को पूरा किया जाएगा। बीआरएस ने अवाम को वादों के नाम पर धोखा दिया, राहुल गांधी। सहाफियों के देरीना हल तलब मसाइल को बीआरएस अपने इंतखाबी मंशूर में शामिल करे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला निजामाबाद वफद की एमएलसी के कविता से मुलाकात, तहरीरी याददाश्त हवाले की। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।